डॉक्टर लक्ष्मी, डॉक्टर न्यूटन, दोबारा ज़िंदगी में आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर न्यूटन, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आज जो मैंने महेंद्र जी से बात की है उसमें वायलेंस, हिंसा की घटना हुई थी एक। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये जो हिंसा या वायलेंस होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसका कोई आध्यात्मिक एंगल भी है, कोई स्पिरिचुअल वजह भी है उसकी? Definitely, there is a spiritual perspective behind, spiritual reason behind. So, in this earth plane, there are different kinds of people, and who are at different evolutionary scales. Okay. There are basically 4 categories of people. We can easily understand the people who are violent, people who are non-violent, people who are very truthful, people who are evolved beings. So, the first category of people are the beginner souls who are tamasic people. Okay. Tamasa means a lot of laziness, lot of negative attitude, lot of violent attitude. It's called himsatmak pravrutti. Basic, their inner nature is survival fears. With survival fears, they have so much of aggressiveness, violent nature inside them. They're called tamasic people. I harm others for my survival. It's me, mine, my property, it's my life, my me, all that is a tamasic, basic tamasic nature. And after hundreds of such lives, we gradually progress to what's called Rajasic lives. Rajasic. Rajasa means, dynamic nature, power nature. I am very powerful, status quo, glamour, and power is a more important thing here. Rajasic people, very aggressive people again. With the power, they can harm others. For in the high positions, the egoistic nature comes. अहम से काम लेते हैं। Yes. There can be violent nature. The third category of people are called sattvic people. These sattvic people have non-violent nature. Ahimsatmak pravrutti. Oh, why I should harm other people? And even the thoughts, they don't even intend to harm others. They are non-violent people, sattvic. Then gradually we progress to Suddha Sattvic lives, the fourth category. Suddha Sattva means where you refine yourself much more. And those people are called liberated souls or enlightened beings. So violence is there in the world because still those souls are having the survival fears, and they're still in the process of evolution. Terrorists, robbers, thieves who harm, who steals the other properties, all comes under these 2 categories called tamasic, rajasic. थैंक यू सो मच डॉक्टर न्यूटन, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही अहम जानकारी थी हमारे लिए। थैंक यू डॉक्टर लक्ष्मी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हैं उसके बाद उस इंसान में कुछ तब्दीलियाँ होती है, वो तब्दीलियाँ ज़रूरी है कि पॉजिटिव हो, और बहुत सारी पॉजिटिव तब्दीलियाँ होती है? ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस का अनुभव है, इस अनुभव के बाद ज़्यादा तक लोगों में बहुत चेंजेस आ जाते हैं, ज़्यादा तक पॉजिटिव चेंजेस। दे स्टार्ट बिकमिंग मोर अनकंडीशनल। उनमें एक ऐसा प्रेम की भाव पैदा हो जाती है, एंड दे कैन रिलेट विथ पीपल विथ ऑल दैट लव विदाउट एनी कंडीशंस। और सेकंड थिंग ये है कि वो बहुत जो कुछ भी विषय है या जो कुछ भी लोगों के बारे में जो कुछ भी हो, उनके बारे में उनका समझ बढ़ जाता है, बहुत समझदार बन जाते हैं। और एक चीज़ है, ये बहुत चाइल्ड लाइक बन जाते हैं, ये बच्चों के जैसे, बहुत स्पॉन्टेनियस, बहुत नेचुरल और बहुत जॉयफुल भी हो जाते हैं। सो ऑल दिस चेंजेस दे स्टार्ट हैपनिंग आफ्टर सच एक्सपीरियंसेस। थैंक यू सो मच डॉक्टर लक्ष्मी।
कि डॉक्टर न्यूटन जब ये बेहोश पड़े थे 3 दिन तक, इन्होंने कुछ देखा, कुछ अनुभव किया। आज इनके पास, इनके मन में ये सवाल है कि वो अनुभव क्या था, वो क्या देखा था उन्होंने। वो शायद हमें पता चलेगा जब आप इन्हें गाइडेड मेडिटेशन के जरिए ले जाएंगे। आज महेंद्र मौत का वो एक बार गुजरा हुआ मंजर फिर देखने जा रहे हैं, पर इस बार अकेले नहीं हैं। इनके साथ है हमारे स्पिरिचुअल गुरुज, जो मार्गदर्शित ध्यान के जरिए इन्हें मिलवाएंगे इनके जवाबों से। महेंद्र, क्या आप अपने जवाबों से मिलने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। वो जो एक आवाज़ थी ना पीछे से जो बोल रही थी ऐसे करो, वो मैं जानना चाहता हूँ, वो क्या थी वो आवाज़? बरसों पहले बीती रात के दरवाजे फिर खुलेंगे, जिनसे आकर मिलेगी दोबारा जिंदगी। महेंद्र जी, it's going to be very great. आज महेंद्र गाइडेड मेडिटेशन यानी मार्गदर्शी ध्यान के जरिए अपने अनोखे अनुभवों को दोबारा जिएंगे, जिसमें डॉक्टर न्यूटन उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना के रहस्य को समझने में उनकी मदद करेंगे। और ये सब होगा हम सबके सामने, ताकि हम जान सकें उस एक रात के रहस्य को, जिसका अंधेरा आज भी पल पल महेंद्र को डसता है। एक मोटर तैयार है? हाँ बिल्कुल। Right. अब आपके आंखें बंद कीजिए और गहरी लंबी सांसें लीजिए। इनहेल एंड एक्सेल। अंदर जाने के सांस के साथ कंप्लीटली रिलैक्स योर बॉडी। बाहर जाने के सांस के साथ टोटल थकान बाहर निकाल दीजिए। टोटली रिलैक्स। इनहेल एंड एक्सेल। From top of your head to the bottom of your feet, every part of your body totally relax again. Just relax. At this moment, I'd like you to project your mind to this favorite place of nature. Ati sundar prakritik place. Beach. Go on describing further whatever you are feeling, whatever you are experiencing. मैदान है। वो थोड़ी घाटी है। How are you feeling? हल्का हल्का। Halka, halka. Totally relax in that nature. Completely relax yourself. Thousands of times deeper than ever before to this beautiful relaxation, beautiful meditative state. At this point of time, I'm going to count 5 to 1. This counting process, I'd like to go back and back in time to that memory of your near-death experience. 5, all the way back into that memory of the near-death experience. 4, remember, recall the details of
that memory now. 3. Relive, re-experience it as if it is happening now. 2. Be there. 1. Tell me now. मैं बाइक पर जा रहा था। उसने मुझे पकड़ के 2 जनों ने जैकेट खींची मेरी। वो कौन लोग हैं? एक छोटी हाइट का लड़का है, वो जैकेट खींच के मार रहा है। एक मोटे से आदमी ने चाकू मार रहा है। फिर मिश्रा जी उसको बिठा के मैं आगे घर फिर ऑटो पुलिस वालों ने ऑटो रुका दिया। ऑटो के अंदर मेरी वाइफ, मैं और 2 जने और। हॉस्पिटल ले गए। कहाँ चाकू लगाया आपको? गले में। उस टाइम सांस नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने देखा, फिर पापा आ गए, मम्मी आ गई। मेरे चेहरे पर हाथ फेरा। मम्मी ने बोला ठीक हो जाएगा। Listen to what your papa is saying, what your mommy is saying. रो रही है। मम्मी रो रही है। Yes. पापा रो रहे हैं। सब रो रहे हैं। अपना पैर नहीं उठा पा रहा था, सांस नहीं आ रही।
मैंने आँख बंद कर ली। जो अनुभव कर रहे हैं इसके बारे में बताइए। एक आवाज आई। Describe about this voice. अजीब सी आवाज है। बिजली चमक रही है। आगे pay attention to whatever that you have experienced in that moment. सूरज की रोशनी है। आंखों पे आ रहा है। Right this moment, slowly detach yourself from that memory and let us go back again to that moment when you had this near-death experience. I'd like to connect to that. Where you are crossing these circles where you are hearing this sound whatever you are seeing, feeling, experiencing. घंटी की आवाज आ रही है मंदिर की। In this meditation state, like to connect with the guide, your spiritual guide, where you can communicate with your guide to understand about this experience. Why you are back? What's the significance? What's the purpose of this? मेरे माँ बाप के लिए, मेरी वाइफ के लिए। Okay. For your parents. Very good. उस चक्र से निकाल दिया, वापस भेज दिया। This is the time. धीरे धीरे आप वापस वर्तमान में लौट आइए. Can slowly come back. सारे ऊर्जा को समेटते हुए slowly return back.
सारी अनुभूतियों को समेटते हुए वापस लौट आइए। Slowly, slowly you can open your eyes. Right. थैंक यू। आप आज दोबारा उस अतीत में गए थे, उस रात में गए थे और वहाँ पर काफ़ी कुछ अनुभव किया आपने। तो बताइए आप मुझे कैसे क्या हुआ और आपकी पूरी जर्नी के बारे में बताइए हमें। वो जो मेरे साथ वाक़या हुआ है ना, वही बातें मुझको रिपीट आ रही है, मगर एक जो साउंड मेरे को उस टाइम में सुनाई दे रहा था वो मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है। वो चीज़ दिखाई दे रही है मगर वो साउंड सुन नहीं पा रहा मैं। कोई एक मंदिर की सी आवाज़ आ रही है, मंदिर की घंटी की आवाज़ आ रही है बार बार, वो सब मेरे को ध्यान आ रहा है। डॉक्टर लक्ष्मी, इनका जो पूरा सफ़र था उसमें एक बात साफ साफ निकल कर ये आई है कि इन्हें वापस आना था अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए जो तकलीफ़ में है, अपनी बीवी, अपने बच्चे के लिए। क्या निचोड़ है इस बात का? एक्चुअली जनरली ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का अनुभव है, इस अनुभव में ज़्यादा तक यही चीज़ उन्हें खींच लाती है फिर वापस इस बॉडी में, क्योंकि देयर आर मेनी people they feel that in that state the loved ones are waiting for them, they need to go back and again take care of them, connect with them। और ज़्यादा तक मास्टर्स भी उन्हें गाइड करते हैं कि आपको अब जाना है, जाके आपको माँ बाप से कनेक्ट करना है या आपको फैमिली के लिए आपको जाना है, फिर वापस जाना है। डॉक्टर न्यूटन, अब मैं आपसे चाहूँगा हमारे साथ अपना संदेश हम लोगों को दें। Today's message is forgiveness. We need to even forgive people and let us give an opportunity for them to grow, realize the past mistakes and progress. Every person need to be forgiving. That's how we make a progress. We don't get stuck at one place. And the other person is getting this opportunity now to grow, to realize, to again progress. That is what is required in our life, forgiveness. Kshamadhan, Mahadan. Thank you so much, Dr. Nia. क्षमादान, महादान। जो भी गलतियां हमारे आसपास के लोगों से हुई है, उन्हें अपने हृदय में अगर हम क्षमा कर पाएं तो जीवन वाकई विशाल है। कितनी खूबसूरत बात कही आज आपने। मैं चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्पिरिचुअल गुरुज इस खूबसूरत बात को और खूबसूरत बनाएं और हमारे मेहमानों को एक भेंट दें। Lotus. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू Wonderful, wonderful. थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए। आपको ये क्रिस्टल लोटस मिला है आज सर। हाँ, डॉक्टर न्यूटन के हाथों से। आपके लिए क्या मायने रखता है ये लोटस? सर इट्स माय ग्रेट प्लेजर। बहुत अच्छा लगा मुझे डॉक्टर साहब। जिंदगी के रास्तों पर हर रोज एक नया पन्ना खुलता है और इसी नएपन में ये हमेशा ताज़ा बनी रहती है, मरती नहीं। रोज मिलती है एक नए रूप में और मजे की बात यह है कि वो रूप कैसा हो कोई और नहीं, हम ही डिसाइड करते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, जिंदगी का गीत गुनगुनाते रहिए। हमारी भी यही कोशिश है कि इसका हर लम्हा आपको खुशियों की नई मंजिलों तक ले जाए। इसके लिए कुछ और ऐसे लम्हे लेकर एक बार फिर आएंगे हम, डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी के संग। एक बार फिर मिलेगी दोबारा जिंदगी।